Hello everyone, welcome to my channel. So today I have invited Rohit Verma and we have already recording part 1 of this video, and you can check out this video in the description, or you can simply check out my channel for the part 1. So in the part 1 of this video we have discussed about Facebook interview experience, and as he worked at Facebook London and he shifted to Facebook London to Google India. So in this video we will discuss why he shifted from Facebook London to Google India. And in the part 1 I have already given context like you should definitely watch part 1 to understand more about this video. So hello Rohit, thank you so much for accepting our invitation. So can you Thank share you. like since you worked like around 5-6 years, right? 4-5 years at abroad. So from after working 4-5 years abroad, why you shifted to Google or Google India? And definitely why you shifted to India? Okay, so I have just beside me I have my reason sitting here. So here is my baby. Okay, Nice. so Hello. yes, sir. Say hi, say hi, say hi. So here is my baby. So Say because hi of in the her, comment section. I've actually shifted to India. Uh, so what happened is like when I was working at Facebook London. My wife was also there with me, and what happened is like, so she got pregnant there in London, and we found somehow the medical facilities that were there, even though it was good, but just the kind of process you need to follow, right? It's like we didn't like it somehow. There are a lot of people who are going to write in comment that how can you say that London's medical facilities are not good. I'm not saying they're not good or something. It's just that you need to follow a lot of process, and we as an Indian now kind of spoiled, right? That in India you can go to any hospital directly and they'll look at you, but in London, like, you have to book appointment. There is a process. You go there and then only you can meet, and there is some letter that comes to your house which has the appointment date. There's like basically a lot of process, and if you want to do some kind of ad hoc or emergency thing, it's not great. And maybe London is anyways currently going through this medical crisis, like, because of after COVID, they have very few doctors available, and all those kind of things are there. So my wife came to India for during her pregnancy. I was still working from Facebook London, but the thing is, because the work from home was allowed, so I was also coming to India and going back. I was traveling India and London. I'm doing back and forth. So during that was happening, right? And we saw that in India the medical facilities were like much better if you have good amount of money. Like, if you can spend Correct. money, then you have a very good facility. Correct, right? Even when Everybody we agrees to compare that. India and US, na, we compare like entire India with US, then you can consider Right. medical facility is not good. But for big city like Bangalore, Delhi, medical facility is really Right. nice. Yeah, it's a very good facility. If you have money, if you can spend, then you can basically, doctor can come to your house. आपके घर पे डॉक्टर आ Correct. जाएगा अगर आपके पास. लेकिन लंदन में ये नहीं हो पाएगा. तो उसके बाद जब so basically my पैटर्निटी लीव स्टार्टेड. और फेसबुक में पैटर्निटी लीव काफी अच्छी होती है, मतलब ऑलमोस्ट Yeah. 6 मंथ की पैटर्निटी लीव थी वहां पे. तो वो भी एक बहुत बड़ा पर्क है, मैं बोलूंगा, गूगल के कंपैरेटिवली. तो उस समय पे जब मैं आया इंडिया, तो इंडिया में काफी टाइम स्पेंड करा, एंड देन आई डिसाइडेड कि यहाँ पे फैसिलिटीज वाइज देयर आर लाइक लॉट ऑफ गुड फैसिलिटीज. लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल, योर फैमिली इज हियर. तो लाइक, बेबी को रेस करने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज फैमिली सपोर्ट इज देयर. और बच्चे के लिए थोड़ा अच्छा भी होता है कि वो अपने दादा दादी नाना नानी के साथ रहे, राइट. Correct. दूसरी Correct. चीज मेरे को ये लगी कि यहाँ पे हम हाउस हेल्प बहुत इजीली मिल जाती है. तो आप बच्चे के लिए नानी रख सकते हो. हाँ बेटा, है ना. तो वो हमें लगा कि और वहां पे लंदन में इन सब चीज के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता, मतलब बहुत इनकन्वीनियंस होती. बच्चे को कैसे छोड़ के जाओगे आप? लेट्स से हस्बैंड वाइफ हो और आपका बेबी है, और मान लो वर्क फ्रॉम होम अलाउड नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप बच्चे को किसी क्रेच में डालोगे, प्ले स्कूल में डालोगे, और वहां पे प्ले स्कूल के चार्जेस बहुत हाई थे. मतलब बहुत हाई मीन्स कि अगर मैं इंडियन रुपीस में बात करूं, तो एक दिन का चार्ज था ऑलमोस्ट 12,000 to 13,000 रुपीज 1 डे का, राइट. तो
और दूसरी चीज, मेरे को एक और चीज लगी कि लंदन में हाउस रेंट बहुत ज्यादा है। मतलब वहां पे got it. नॉर्मली 2 BHK का 2500 पाउंड है, जो कि ऑलमोस्ट अराउंड 2,70,000 करीब बैठेगा। राइट, तो वो भी चार्जेस बहुत ज्यादा है, फिर बेबी के भी चार्जेस बहुत ज्यादा है। तो आप विदेश जाते हो किस लिए हो? आप जाते हो वहां पे सेविंग करने के लिए कि आप पैसे बचा के लाओगे। लेकिन अगर आप वहां पे फैमिली भी रेज कर रहे हो और आप अच्छे घर में भी रहना चाहते हो और आप ट्रैवल भी करना चाहते हो और बाहर भी खाना खाना चाहते हो, तो फिर आपकी सेविंग बेसिकली बचती नहीं है। रेदर Correct, इंडिया correct, में जब है, इंडिया में भी अब हुआ क्या, फिर जब मैंने इंडिया में एक्सप्लोर करना शुरू करा, तो मुझे पता चला कि इंडिया में भी सैलरी कंपनीज बहुत अच्छा पे कर रही हैं। correct, इन correct. इंडिया ऑल्सो द सैलरीज आर रियली गुड, है ना। और आप अगर कंपेयर करो रेंट, तो वहां पे रेंट ऐसा था कि आपकी सैलरी का 40% रेंट में जा रहा है। 30%, 30 to 40% के बीच में आपका रेंट रेंट उस पे जा रहा है। बट आप इंडिया में देखो तो आप हार्डली, मेरे को लगता है कि आपकी जो भी सैलरी होगी, लोग अब डिपेंड करता है कि आपकी कितनी सैलरी है, बट मेरे ख्याल से 10 to 15% सैलरी में आपको अच्छा घर Correct. मिल जाएगा रेंट पे। Even राइट, like it राइट, depends upon person to person. What I observed, I personally lived in like 6,000 per month rented apartment. Like uh, राइट, I used to live in that apartment. So यहाँ पे आप राइट, सैलरी के हिसाब से अपना अपार्टमेंट चूज कर सकते हो. If you are earning less, then you can definitely get an बिल्कुल, affordable apartment. If you are earning more, then you can get a luxurious apartment as well. So there is a variety, बिल्कुल, range from low to high. करेक्ट, एग्जैक्टली। तो इस वजह से, और फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिया में बहुत हाई है। मतलब आप अगर Correct. लग्जरी हाई क्लास लिविंग की बात करो, आपको अगर वैसी लाइफ लंदन में जीनी है, तो आपको बहुत पैसा चाहिए। मतलब कि हमारी ये टेक टेक में जो सैलरी मिलती है, इवन लोग बोलते हैं कि बहुत मिलती है, ये सैलरी इनफ नहीं है वहां पे लग्जरी लाइफ जीने के लिए। आपको वहां पे अगर लग्जरी लाइफ जीनी है, तो आपको बहुत कमाना पड़ेगा। मतलब मैं एक एग्जांपल दूं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि एक यूएस में सिलिकॉन वैली में एक डिसेंट सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं फैन कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, डिसेंट सा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा जिसकी सैलरी $5,000 पर मंथ आती होगी। मान लीजिए $5,000 पर मंथ सैलरी इज अ गुड सैलरी इन यूएस। इतनी सैलरी आ रही है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं एक फुल टाइम मेड रखूं अपने घर पे, तो वहां पे फुल टाइम मेड की भी जो सैलरी है ना, वो $5,000 ही है। ठीक है। तो तो बेसिकली आप देखो वहां पे, तो अगर सैलरी कंपेयर करो, तो एक मेड की सैलरी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी एक पॉइंट पे मतलब कि ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगी। डेफिनेटली सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी में और भी कंपोनेंट्स होंगे, उसको स्टॉक्स मिल रहे होंगे, वो सब होंगे। बट अब बस मैं आइडिया देना चाह रहा हूँ कि कितना डिफिकल्ट है, कितना एक्सपेंसिव है वहां पे हाउस हेल्प Correct. रखना, सपोर्ट And रखना। the time you will और spend in cooking and all, the same time if you will spend in करेक्ट, freelancing and anything other than that, you can earn more in India. So overall, this is also more एब्सोल्युटली, like बिल्कुल, एग्जैक्टली, बहुत ही सही पॉइंट बोला आपने कि हम वहां पे टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं ना एक तरीके से। अगर हमारे पास कुछ बेटर स्किल है, तो हम खाना बनाना, कपड़े धोना, इवन दो कि सबको करनी चाहिए ये चीज, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप सोचो कि वो टाइम आप और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो ना दूसरी चीज correct, में। correct, तो वहां पे लोगों के वीकेंड्स तो ऐसे ऐसा लगता है कि वीकेंड्स है ही नहीं वहां पे। आपको लगता है कि हर वीकेंड पे आपको कुछ करना है, कुछ ना पेंडिंग पड़ा हुआ है आपका। या तो आपके कपड़े धोने हैं बहुत सारे, या बर्तन धोने हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा मेजर काम है जो पड़ा हुआ है। आप इंडिया में ये सारे काम आप आपके घर पे आप कुक लगवा सकते हो, आपके घर पे आप मेड लगवा सकते हो जो कपड़े, और यहाँ पे जो लॉन्ड्री सर्विसेज हैं वो भी इंडिया में बहुत सस्ती है। राइट, आपके correct. हर मोहल्ले में, आपके भी घर के आसपास कोई सामने शॉप होगी जो, जिसको दे दो कपड़े, वो ₹6 Press ₹7 में and सब आपको कुछ धो के हाँ प्रेस करके एकदम घर पे भी दे जाएगा वो। ऐसी correct, correct. ये सब And फैसिलिटीज even है we ही are नहीं यूएस generating the में। employment. Like we are like, I'm totally in favor of having maid and cook because you are generating an employment. You are giving बिल्कुल, this money and this money is like household for them. Like we are earning, we should have a cook. We should not, even though we know how to cook now, still we should have the cook. एब्सोल्युटली, बिल्कुल, ये बहुत ही सही पॉइंट है, और यही है मतलब कि अब लोग इस पे भी बहस कर सकते हैं और लोगों के नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, बट रियलिटी में देखो तो इन लोगों को भी, ऐसे लोग हैं राइट, वो स्किल्ड नहीं है उस तरीके से, उनकी स्किल्स ही वो है। Mm, राइट, है ना। correct, उनको अच्छे से ट्रीट करो, उनको अच्छे से सैलरी दो, आप एक्चुअली में सोसाइटी का भला ही कर रहे हो अगर आप correct. ज्यादा अर्न कर पा रहे हो उन लोगों से, तो राइट। तो ये बेटर चीज ही है। राइट, तो इंडिया में तो आप ऐसा रख सकते हो, आप कार रखो तो अपनी फैमिली के लिए ड्राइवर रख सकते हो, आपने वहां एक एम्प्लॉयमेंट Mm, जनरेट कर दिया, आपके घर पे मेड आ रही है, वो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा, आपके लॉन्ड्री सर्विस वाला एक एम्प्लॉयमेंट। तो एक्चुअली में आप काफी अपने कमाई का हिस्सा आप सोसाइटी के लिए भी हेल्प कर सकते हो। और आप अपना खुद का देखो कि आपकी खुद की लाइफ कितनी कितनी बेटर हो रही है ना उस सबसे, अगर ये सारा सपोर्ट है,
तो ऑब्वियसली हमारे पास वीकेंड्स होते हैं। अब करेक्ट। मैं तो वही देखता हूँ बैंगलोर में, आपने भी ऑब्जर्व करा होगा, बैंगलोर में फ्राइडे की जो ऑफिस कन्वर्सेशन होती है वो सिर्फ इस बारे में होती है कि इस वीकेंड पे कोई क्या कर रहा है। क्या करना है। इवन यूएस में अभी मैं ये है ना, वीडियो भी इसलिए रिकॉर्ड कर पा रही हूँ क्योंकि मैं कुकिंग नहीं कर रही हूँ, मैं हाउस क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ। अगर मेरा सारा टाइम हाउस क्लीनिंग कुकिंग में चला जाता तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती। एब्सोल्युटली। तो वही बात है ना कि लेकिन यूएस में कॉन्वर्सेशन होती नहीं है वीकेंड कॉन्वर्सेशन, क्योंकि सबको पता है कि सबको कुछ ना कुछ काम करना है और कुछ अवेलेबल है ना। ठीक है, क्योंकि मतलब लोगों की वहां की कॉन्वर्सेशन और यहाँ की कॉन्वर्सेशन से ही फर्क पड़ जाता है। प्लस ऐसी बहुत सारी चीज होती है। मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है जो यूएस में माइक्रोसॉफ्ट में था, और वो लिटरली डिप्रेशन में चला गया था बिकॉज ऑफ होम सिकनेस। उसको उसकी फैमिली से और फ्रेंड से दूर रहने में इतनी, और काफी टाइम लगा उसका, काफी दिन तक इलाज भी चला उसका उस चीज को लेकर। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जो लोनली रहना पसंद नहीं करते, आपको बहुत अपना फ्रेंड सर्कल चाहिए, और आप यूएस में कहीं पे अटलांटा जैसी सिटी में चले गए जहाँ पे आपका सबके घर दूर दूर हैं, आप अकेले घर में रह रहे हैं, तो आप, हो सकता है हम इंडियंस जनरली ऐसा हो सकता है कि हम डिप्रेशन में चले जाएं, बिकॉज हम लोग को बोलने हमें की क्राउड में आदत रहने है, की आदत है। शेयर क्राउड, हमें क्राउड में रहने की आदत है। तो उन लोगों के लिए वैसी जगह सही नहीं है। तो बहुत सारे, और जितने लोग यूएस में रह रहे हैं, लंदन में रह रहे हैं, मेरे को कुछ भी उनके अगेंस्ट नहीं है। मुझे लगता है कि किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हर कोई जाना चाहता ही है। सबका सपना भी होता है, मेरा भी था ऐसे ही। कुछ भी किसी चीज के अगेंस्ट नहीं है, बट हाँ बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं, और लोग उनको समझ के कि हाँ ये सारे सेक्रीफाइसेस हम कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, मोस्टली पैसे कमाने के लिए ही कर रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि एयर साफ है और एनवायरनमेंट क्लीन है और ये सारी चीजें, तो ये सब भी फैक्टर हो सकते हैं किसी के लिए। अगर वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे को कम पोल्यूशन वाले एरिया में ही रहना है, तो उसके लिए हो सकता है कि ठीक है वो चला जाए, उसका वही प्रायोरिटी है, तो उसके लिए वो बेस्ट जगह है। बट अगर तुम्हारी प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि मुझे सिर्फ पैसे सेव करने हैं, तो हाँ पैसे थोड़े ज्यादा सेव कर पाओगे, बट एट द सेम टाइम आप बहुत सारे ऐसे सेक्रीफाइसेस करोगे जो आपको रियलाइज नहीं होंगे। बट आपका दिन, आपका लाइफ, वर्क लाइफ थोड़ी हेक्टिक रहेगी, चीजें थोड़ी प्लान करके चलनी होगी, थोड़ी सी फ्रीडम में भी, थोड़ी सी मेरे को लगता है कि इंडिया में हम लोग थोड़ा ज्यादा खुल के रहते हैं, थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं, एंजॉय कर पाते हैं, तो वो सारी चीजें थोड़ी तो रिस्ट्रिक्ट हो ही जाती है किसी ना किसी लेवल करेक्ट। पे, है ना। या तो ये है। तो मुझे फिर हम लोग वही मेरे केस में वही लगा दैट आई थॉट कि बेटर होगा कि हम इंडिया ही शिफ्ट हो जाए। मैं जब यहाँ पे इंडिया में रहा और यहाँ का सब सपोर्ट देखा, मेरी वाइफ की पूरी प्रेगनेंसी जो हम लोगों ने यहाँ पे जिस तरीके से हैंडल करी, देन आई थॉट कि इट वुड बी मच बेटर कि मैं इंडिया ही शिफ्ट हो जाऊं, एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ जॉब इन इंडिया। तो फेसबुक में था, तो गूगल रिक्रूटर एनीवेज लाइक, तो ऐसा होता है जनरली अगर आपकी प्रोफाइल में ऑलरेडी कुछ अच्छी कंपनीज का नाम है, तो रिक्रूटर थोड़ी सी आपको हायर प्रेफरेंस देते हैं। तो करेक्ट। रिक्रूटर एनीवेज रीच्ड आउट टू मी, और मेरे को 2 साल हो गया था इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करे हुए, तो आई आई आस्क्ड सम टाइम कि मुझे थोड़ा टाइम दो प्रिपेयर करने के लिए। मेरा प्रोसेस काफी लंबा चला गूगल का, बिकॉज मैं काफी बीच बीच में गैप ले रहा था इन बिटवीन इंटरव्यूज, एंड देन हायरिंग फ्रीज आल्सो हैपेंड इन बिटवीन। इनफैक्ट दिस इज ए तो पर्क्स ऑफ हायरिंग फ्री, गूगल। लाइक अदर कोई इंटरव्यू बीच में इतना गैप नहीं देती है जितना गूगल देती है। अगर इफ यू वांट टू टेक गैप ऑफ 1 मंथ आल्सो 2 मंथ आल्सो, दे विल गिव यू गैप फॉर प्रिपरेशन। एग्जैक्टली। तो गूगल का यही है, गूगल विल डू इट्स बेस्ट टू गिव यू अ परफेक्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस। वो, आपको टाइम चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको क्या पढ़ना है, आपको हर चीज प्रोवाइड करती है गूगल। मतलब गूगल लिटरली ऐसा लगता है कि वो हमारी हेल्प कर रहे हैं कि गूगल में आ जाओ। और मेरे को बहुत ही अच्छा इंटरव्यू प्रोसेस लगा, मतलब वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू प्रोसेसेस मैं बोलूंगा गूगल का है। एंड करेक्ट। मेजर मतलब कि अगर हम रीजन की बात करें तो यही रीजन था कि मैंने ये सब देखा यहाँ पे, एट द सैलरी दैट गूगल वाज ऑफरिंग, वो डेफिनेटली वहां की सैलरी से काफी कम थी, बट वो यहाँ के हिसाब से देखो, और जितनी मेरी जरूरतें हैं, जो भी मेरी नीड्स हैं अभी, उन सबके लिए वो काफी सफिशिएंट थी, मोर देन इनफ थी। तो आई थॉट कि ठीक है, Ultimately, the saving you बेटर, will do here, that will be more than the saving you will do there. You will definitely earn more एग्जैक्टली, than you will spend more also. एब्सोल्युटली। तो वो चीज है, तो इसलिए फाइनली आई थॉट कि इंडिया ही आ जाता है ना। So can you share a Google interview experience, like brief about like how many rounds was there, like what kind of a question they asked? So basically, in Google round, Google, anyways, like again for Google also the same thing happened, that we had a screening round, and screening round again would be a simple.
question based on disjoint. It was a question based on disjoint set union. Some question was there, simple question. And then we had then I had two technical coding rounds. Basically, these are based on DSA, and one system design round. And then one Googliness round, very famous Google's famous Googliness round was there. And what happened, because I had like, so in between the hiring freeze happened, and there was a long gap between interviews. So because there was a long gap of almost 5-6 months, then they asked me to take an additional round of DSA interview. because वो पुराना उनका फीडबैक हो चुका था, तो इट्स बेटर ना कि एज अ कंपनी दे वांट कि अभी करंट में स्टेट कैसा है कैंडिडेट का, टू चेक दैट, राइट, दे माइट वांट टू हैव एडिशनल राउंड. तो मेरा एक एडिशनल राउंड और हुआ था. तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि 3 कोडिंग राउंड और एक सिस्टम डिजाइन राउंड हुआ था. और अब वही था कि आई गेस क्वेश्चन वाइज तो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं जो L3 और L4 लेवल से पूछे जाते हैं. जैसे L5 लेवल से कुछ और एडिशनल, System उन्हीं क्वेश्चंस designing. पे कुछ एडिशनल. हाँ, उन्हीं डीएसए के क्वेश्चन में भी सिस्टम डिजाइन इंक्लूड हो जाती है कि इसको Correct. ये हाई लेवल पे या डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल सिस्टम में कैसे काम करेंगे, और उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं. तो हर राउंड इज अ मिक्स ऑफ कोडिंग एंड सिस्टम डिजाइन. तो सारे राउंड में ऑलमोस्ट सिस्टम डिजाइन का थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है. Correct. So, like, can you share like how you like, as I can see, ki you already having like years of experience. So I think like from experience itself, you have built this system designing knowledge. But what are some extra level of preparation you have done for the system designing interview? So system design, for design interviews, mostly like I started with, so actually जब मैंने शुरू किया था सिस्टम डिजाइन के बारे में पढ़ने के लिए, तब इतना इंटरनेट पे इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, राइट. और देयर वाज नो प्रोसेस बेसिकली कि सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में लाइक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका प्रोसेस क्या होगा, कैसे पहली चीज हम क्या बताएंगे. तो कोई ऐसा प्रोसेस नहीं था जब मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया था. Then I was like, people started writing articles, and these articles are basically nothing, just a Google design documents. Like जैसे हम Google में, आप भी जैसे Google में काम करते हैं, हम लोग Google में काम करते हैं, तो प्रोजेक्ट से पहले we write a design document, right? प्रोजेक्ट डिजाइन डॉक. उस डिजाइन डॉक में होता है कि क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस हैं या स्कोप क्या है, और वैसी हम चीजें लिखते हैं, राइट, कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है. तो एक्चुअली बड़ी पब्लिश दिस काइंड ऑफ आर्टिकल्स इंटरनेट पे. आजकल सारे सिस्टम डिजाइन लोग इस तरीके से अप्रोच करते हैं. देन मैंने क्या पता लगाया कि इन सारे सिस्टम डिजाइन जो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस है लोगों के, उसमें कुछ चीजें कॉमन है. व्हाट आर दिस कॉमन थिंग्स? जैसे कि आपका लोड बैलेंसर एक कॉमन कंपोनेंट हो गया. सीडीएन क्या होता है, वो एक कॉमन कंपोनेंट हो गया. आपके डेटाबेसेस के बीच में चॉइसेस क्या होती हैं, वो एक कंपोनेंट हो गया. उसके बाद में कंसिस्टेंट हैशिंग उसमें एक कंपोनेंट हो गया. तो मेरे को लगा कि ये सारे फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं सिस्टम डिजाइन के. तो मैंने ये सारे फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी. एक करके एक सिस्टम डिजाइन के फंडामेंटल्स ब्लॉक्स जो थे, बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, उनको एक करके पढ़ा, उनको समझा. और अल्टीमेटली आपको सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में यही करना होता है कि इन सारे फंडामेंटल ब्लॉक्स को यूज करके कोई सिस्टम डिजाइन करना होता है. तो अगर आपके फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो आप सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में अच्छा कर पाओगे. और फिर दूसरी, इसके अलावा एक तो ये प्रिपरेशन थी, दूसरी प्रिपरेशन थी कि आप प्रैक्टिकली रियल लाइफ में जो भी सिस्टम यूज करते हैं उसके बारे में अगर आप सोचने लगे कि हाउ दिस सिस्टम माइट हैव बीन बिल्ट. कि अगर मुझे, लेट्स फॉर एग्जांपल आप स्विगी यूज करते हो, तो स्विगी कैसे बना होगा, कैसे ऑर्डर कैसे जाता होगा, वो कहीं पे डेटाबेस में स्टोर होता होगा, फिर डेटाबेस से कोई उसे पुल करता होगा, फिर वो ड्राइवर राइडर को असाइन होता होगा, फिर राइडर जाता होगा तो उसकी लोकेशन हम कैसे ट्रैक करते होंगे. तो इसके बारे में जस्ट सोचो, और फिर बहुत सारे सीनियर इंजीनियर्स हैं, उनसे इसके बारे में डिस्कस करो. तो मोस्टली जो सिस्टम डिजाइन प्रिपेयर होता है वो डिस्कशन से प्रिपेयर होता है. ज्यादा पढ़ के सिस्टम डिजाइन में आप अच्छा नहीं कर सकते. आपको डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. तो मेरे कुछ फ्रेंड्स के ग्रुप बन गए थे, हम लोग ग्रुप में साथ में बैठ के कोई टॉपिक डिसाइड करते हैं, उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं. तो सब लोग अपने अपना इनपुट बताते हैं कि आई थिंक कि ऐसे डिजाइन होना चाहिए, आई थिंक ये डेटाबेस हमें चूज करना चाहिए, आई थिंक यहाँ पे हमें क्यू यूज करना चाहिए, और यहाँ पे हमारी कैशिंग लेयर होनी चाहिए टू स्पीड थिंक फास्ट. तो इस तरह के डिस्कशन से मैंने सिस्टम डिजाइन समझा अच्छे से. So as you said कि ये डिस्कशन से बिल्डअप होती है. So
अगर आपके पास डिस्कशन करने के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं है, then you can go to LinkedIn or Discord channel, or there are some Reddit thread also, like where people used to discuss about different systems, and you can read about this Medium article. एंड आर्टिकल बस पढ़ो नहीं, राइट। उसका कमेंट सेक्शन भी देखो। लाइक कमेंट सेक्शन में देखती हूँ मैं, आपका भी लाइक मीडियम पे बहुत सारे फॉलोअर्स है। आई जस्ट हाँ लाइक हाँ read some of your article as well, so you can even read the like article published by him. I can put this in the description. So आप मीडियम से बहुत ज्यादा बेनिफिटेड हो सकते हो। एंड आज भी मैं बिल्कुल लिंक्डइन में एक सिस्टम डिजाइनिंग का पोस्ट करी हूँ, वो भी आप देख सकते हो। तो इस टाइप से आप अपना एक इन्वायरमेंट खुद क्रिएट कर सकते हो, अगर आपके पास एक अच्छी इन्वायरमेंट नहीं है तो। बिल्कुल। और होता यही है, मतलब ये तो लाइफ की फिलॉसफी है कि अगर आप अपने आप को सराउंड कर लोगे जैसा आप बनना चाहते हो वैसे लोगों से, आप करेक्ट। ऑटोमेटिकली उनके जैसा बन जाओगे। धीरे धीरे आप इमुलेट करने लगते हो, उनका बिहेवियर आपके अंदर आने लगता है। तो जो भी लोग हैं जो एस्पायर करते हैं कि हमें गूगल में जाना है, फेसबुक में जाना है, या प्रोडक्ट अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाना है, तो उनको मैं यही बोलूंगा कि आप अपना ग्रुप वैसा बनाओ। अपना अपना दिन भर जो आप यूट्यूब पे देखते हो कुछ भी फालतू का देखने से अच्छा है कि कोई ऐसा चैनल फॉलो करने लगो। जैसे अमृतांजलि का चैनल है, आप वो फॉलो करना शुरू करो, अच्छा अच्छा कंटेंट डालती है। राइट। और सिर्फ हमेशा सिर्फ टेक्निकल कंटेंट से नहीं होगा, जैसे अभी ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट, ये भी आपके लिए यूजफुल है। राइट, कि आप सोशल करेक्ट। कंटेंट भी हो वो भी उसके अराउंड ही हो, उन्हीं जो आपका टारगेट है उन्हीं कंपनीज के बारे में हो, उनके इंटरव्यू डिस्कशन के ऊपर है। तो आप अपना धीरे धीरे अगर अपने रूम का और अपने आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा बना लोगे कि आप इन्हीं चीजों से सराउंडेड है, तो ऑटोमेटिकली आप इम्यूलेट करने लगोगे ये बिहेवियर, और आप भी वहां पे पहुंच जाओगे। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट अपना सर्कल चेंज करने की जरूरत है, आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करने की जरूरत है। Definitely. So even you can follow, like I will put LinkedIn ID of Rohit in the description, so you can check out that as well. So he also like posts really nice content. I personally like since I am not having like years of experience, so I used to read his article at Medium and LinkedIn as well to get some more understanding of system design. Yes, I have knowledge of DSA because I have prepared for DSA interview, but I never gave high level, especially high level design interview, because when I was in the interview phase, I was having just 1 year of experience. So right now I am like reading this kind of article to improve my system designing knowledge. So you can और also देखिए check ये out these कितनी links. ये राइट, ये कितनी अच्छी बात बोली अमृतांजलि ने कि अभी वो ऑलरेडी देखिए गूगल में काम कर रही है, उससे पहले उसने अमेज़न में काम कर रहा है, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट में काम किया, Microsoft. उससे पहले वो उससे वॉलमार्ट में भी काम कर रहा है। वो ऑलरेडी टॉप 3 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम कर चुकी है, एकदम टॉप की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर चुकी है। तो लोगों को लगता होगा कि अमृतांजलि को अब पढ़ने की क्या ज़रूरत है? अब क्या कर वो तो ऑलरेडी बेस्ट जगह पे है। बट देखिए यही अच्छी क्वालिटी होती है ना? और यही बिहेवियर है और यही हमारी इंडस्ट्री की डिमांड है कि हमें कंटिन्यूअसली, क्योंकि हम लोग टेक इंडस्ट्री में हैं, और टेक इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी तो हमेशा इवॉल्व होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, और आपको ग्रो भी तो Correct. करना है आप जिस रोल पे हो, है ना? कल को Correct. अमृतांजलि भी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगी, स्टाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगी, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगी, और वहां पे भी बहुत हाई कॉम्पिटिशन है, तो वो कैसे ग्रो होगी? वो Of courस ऐसे ही तो ग्रो करेगी। continuous वो learning. देखिए, है ना? कंटिन्यूअस लर्निंग, तो कंटिन्यूअस लर्निंग की हैबिट आपको सबको, मतलब यही सबके लिए बेसिकली हम इस पॉडकास्ट का मेन ऑब्जेक्टिव वही रख सकते हैं कि सब सब इस बात को समझे कि कंटिन्यूअस लर्निंग की इंपॉर्टेंस कितनी है। जैसे अमृतांजलि पढ़ती है, मैं भी पढ़ता हूँ, जो मेरे से सीनियर इंजीनियर्स हैं उनके पोस्ट आते हैं या उनके उनके आर्टिकल्स आते हैं, तो मैं वो भी रीड करता हूँ, उनसे मीट करता हूँ, वन ऑन वन मीटिंग सेटअप करता हूँ टू अंडरस्टैंड कि वो कैसी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। इस तरीके से आप लाइफ में ग्रो होते हो, है ना? तो आपकी लर्निंग तो हमेशा इस जिस फील्ड में हम लोग हैं उस फील्ड में कंटिन्यूअस लर्निंग की बहुत ज्यादा हाई वैल्यू है ना? और आप Correct. अभी जहां पे भी हो, विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग आप बहुत ग्रो कर सकते हो। करेक्ट। इवन लाइक कि इफ यू विल सी गूगल में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, स्टिल भी वर्क। हमें जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिलती है आफ्टर डूइंग सम लाइक बेसिक व्हाटएवर वर्क टास्क वी हैव असाइंड, वी स्पेंड दोस टाइम इन द कंटिन्यूअस लर्निंग। एब्सोल्युटली। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा कि जैसे गूगल का इंटरव्यू होता है, लोग बहुत डेस्परेट होते हैं गूगल में जॉब लेने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि बिहेवियरल राउंड में दे शो कि हम तो रात रात भर काम करेंगे, हम तो 24 घंटे काम करेंगे, एंड ऑल दैट। एक्चुअली गूगल
प्रेफर नहीं करती ऐसा, गूगल करेक्ट। एक्सपेक्ट भी नहीं करती। गूगल चाहती है कि आप अपना जो टाइम लिमिट है, आपको जो 9 to 5 है, या बेसिकली आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप 4 से 5 घंटे ऑनेस्टली फोकस के साथ काम करो, उतनी ही एक्सपेक्टेशन है। वो अगर आप अच्छे से करते हो, क्योंकि गूगल को अपना वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंस है, मतलब उसकी भी बहुत वैल्यू करते हैं वो लोग, राइट? क्योंकि हो सकता है आप रात रात भर जाग रहे हो, बट आप फिर गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, राइट, टीम के लिए, है ना? वो करेक्ट। टीम के लिए अच्छा नहीं है, कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। तो गूगल उस पर भी फोकस करती है। तो मतलब बहुत ही अमेजिंग प्लेस है टू वर्क, अमेजिंग लोगों के साथ काम करने को मिलता है, वो भी बहुत बड़ा पर्क है। तो जो बाकी सारे मटेरियलिस्टिक पर्क हैं, जैसे कि खाना है, कैब है, और भी जो सारी चीजें हैं, हमको स्वैग्स मिलते हैं, अलग अलग गिफ्ट्स मिलते रहते हैं, ये सब तो बहुत माइनर से पर्क है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन रियल वैल्यू जो गूगल जैसी कंपनी है आपको देती है, वो आपके लाइक माइंडेड लोग, और जो बहुत ही जब ब्रिलियंट माइंडेड लोग होते हैं, उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। I think that's the most important perk of working at companies like Google and Facebook, right? Correct. Even our discussion is the best learning material. Like it's like Right. और whenever आप we discuss, like there like used to be a tech focused discussion, and in that discussion we really learn a lot. Like I personally learned a lot from Rohit. Like we sit like just our like seats are like just one like besides other. So in this case, like whenever I get stuck in anything, I used to have a very fruitful discussion with him, and in this case, of course, I am improving my learning. राइट, एब्सोल्युटली। और गूगल में एक और चीज आपको दिखेगी कि आपको जहाँ डेस्क वाला एरिया है, जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, वहां पे आपको ऐसे रोबोट जैसे लोग नहीं बैठेंगे दिखेंगे कि बस रोबोट जैसे बैठे हुए हैं। वहां पे आपको Correct. दिखेगा कि हर कोई बात ही कर रहा है, और कोई कोई डिस्टर्ब नहीं होता, या कोई मना बुरा नहीं मानता, सब चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे होते हैं, मतलब चिल्ला क्योंकि के तो हमारा नहीं, बात मतलब भी अ, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। सी हम लोग हाँ। ऐसा नहीं तो करते और हैं लोग, गॉसिप कर रहे हैं ऑफिस में, ऑफ कोर्स ये नहीं करेंगे। हाँ बट हमारा जो हाँ, डिस्कशन होता है ये एक बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन होता है। इनफैक्ट हम लोग जब सीट में बैठते हैं, चार लोग बैठ करके एक पर्टिकुलर टॉपिक लेकर के डिस्कस करते हैं उस पे, और इससे हम दोनों चारों का एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट से ओवरऑल हम चारों की लर्निंग बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। बिल्कुल। और यही है सबसे बेस्ट कल्चर की निशानी, कि अगर आप आपके ऑफिस में इस तरह का कल्चर है कि कोई कहीं पे भी बैठ के कुछ भी बात कर सकता है, और खुल के बात कर सकता है, और मोस्टली डिस्कशन से आप एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। गूगल में एक और मैंने चीज देखी जो बहुत अच्छी है, वो पीयर बोनस वाली, कि आपकी किसी हम्म। ने हेल्प करी तो आप उसको पीयर बोनस दे सकते हो। उसकी वजह से एक अपने आप ही एक हेल्पफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो हेल्पफुल जाता है गूगल नेचर। के अंदर, या है ना? सो इवन तो लाइक आपको व्हेन आई वाज बहुत हेल्पफुल वर्किंग, लोग दिखेंगे, राइट? यस, इट्स नॉट अबाउट कि यू विल गेट हेल्प फ्रॉम योर टीम मेंबर ओनली। लाइक अगर किसी से भी आपको लगता है हेल्प लेनी है, आप सिंपली उनसे मैसेज करो, वो डेफिनेटली अपना 100% देंगे आपको हेल्प करने के लिए, चाहे वो टेक रिलेटेड हो। इवन बिल्कुल अगर आप जो काम कर रहे हो उससे रिलेटेड नहीं हो, लाइक लेट्स से यू आर लाइक लर्निंग लेट्स से सिस्टम डिजाइनिंग ऑफ इंस्टाग्राम, and you got stuck somewhere, you want to understand some topic, you can definitely ask from anyone, and anyone will like give their 100% to explain whatever you will ask. बिल्कुल बिल्कुल, यही सबसे मतलब सबसे अच्छी अमेजिंग बात है, मतलब गूगल की। तो काफी अच्छी डिस्कशन हो गई हमारी, देखिए पॉडकास्ट कहाँ से कहाँ निकल गई, बट आई गेस Yeah. लोगों के लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में होता क्या है, हम क्यों एस्पायर करें। तो आप इस सेशन को एज अ मोटिवेशन सेशन भी सोच सकते हैं, कि है ना, कि ये सारे फैक्टर्स हैं, मोटिवेटिंग फैक्टर्स है कि हमें क्यों इन कंपनीज में जाना चाहिए, या क्यों Correct, correct. डीएसए पे बहुत फोकस करना चाहिए। बिकॉज किसी भी लेवल पे हो, आई गेस डीएसए सबसे कोर पार्ट है इसका, मतलब इन कंपनीज का। तो अभी तो कहीं नहीं जा रहा है, मतलब लगता है कि डीएसए तो पढ़ना ही पड़ेगा सबको। डीएसए तो पढ़ा, देयर इज नो गोइंग बैक। लाइक मैं ना जब लाइव जाती हूँ यूट्यूब पे, तो लोग पूछते रहते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर एन इंटरव्यू विदाउट डीएसए। मैं बोलूंगी यू कांट, और इवन यू कैन ना। लाइक बिल्कुल इसको डीएसए को इंटरव्यू के लिए मत देखो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगी। ये तो यही बात हो गई कि हाउ टू सर्वाइव इन लाइफ विदाउट ईटिंग, और हाउ टू सर्वाइव इन लाइफ विदाउट लाइक लर्निंग कैलकुलेशन। सो लोग समझते नहीं कि डीएसए है क्या। डीएसए है तो कोडिंग है ना, इट्स हाँ वही। प्रोग्रामिंग ओनली। जो प्रोग्रामिंग है, और आप अपने आप को कोडर या प्रोग्रामर बोलते हो, तो आपको बेसिकली डीएसए क्या होता है, एक सिचुएशन है, एक प्रॉब्लम है, जिसको आपको कोडिंग के थ्रू सॉल्व करना है। आप करेक्ट। एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी तो यही काम करते हो, है ना? यस। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें, तो लोगों को लगेगा कि हाँ, इट इज यूजफुल। और बड़ी यस। कंपनीज के लिए, जैसे गूगल, फेसबुक है, इन्होंने ये इंटरव्यू प्रोसेस बनाया कि हम लोग कैंडिडेट को डीएसए के बेसिस पे हायर करेंगे। और ये जो स्ट्रैटेजी थी, उनके लिए काम कर रही है, इसीलिए तो वो आज तक स्ट्रैटेजी उन लोगों ने चेंज करेक्ट। नहीं करी। अगर ये हम्म। स्ट्रैटेजी नहीं काम कर रही होती उनके लिए, अगर वो कंपनीज, क्योंकि
ऐसी स्ट्रैटेजी से हायर करे हुए लोगों ने आज गूगल को जहां तक पहुंचाया वो उन्हीं की वजह से पहुंची है, राइट? तो उनके लिए वो स्ट्रैटेजी काम कर रही है, इसीलिए वो वही प्रोसेस आज भी फॉलो कर रहे हैं। लोग काफी वीडियोस बनाते हैं कि डीएसए इज डेड, और कोई मतलब नहीं है डीएसए पढ़ने का, वो सारा वी डोंट क्लिकबेट यूज होता है, डीएसए, उस पे भी ध्यान मत दें। क्लिकबेट होता है ना। तो ऐसी ऐसी चीजों से बचें, है ना? इस तरह के जो फ्रॉड लोग होते हैं उनसे थोड़ा दूर रहें, बचें। जो जेन्युइन लोग हैं, जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं इन कंपनीज में, उनसे एडवाइस लें, है ना? तो वही आपको सही गाइडेंस दे पाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन था। थैंक यू सो मच फॉर watching this podcast, and thank you Rohit for sharing this valuable information. So overall हम इनफैक्ट मैं बहुत कुछ लर्न करी हूँ इस पॉडकास्ट से, एंड डेफिनेटली आप लोग भी बहुत कुछ लर्न करे होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। थैंक यू रोहित। Thank you so much, Amritanjali. Thanks for inviting me. It was amazing talking to you. So it was one of the best podcasts I've ever recorded. Thank you so much.